گل بہار اس بازار کی زینت تھی اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، گلاب کی رنگت اور بگلے کے پروں سے گرم و نازک ہاتھ۔ جب وہ سج سنور کر چھپر کٹ پر بیٹھتی تو پاؤں سفید کبوتروں کی جوڑی جیسے لگتے تھے۔ ہمارے محلے کے ایک دولت مند شخص نواب سبحانی اکثر گل بہار کے حسن کی بہار سے پیار کا دامن بھرنے اس کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ اسی پیار بھری شب گزارنے کے نتیجے میں گل بہار کے کوٹھے پر ایک بچی نے جنم لیا تو نواب صاحب کے آسان خطا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بننے سے بچانے کی خاطر خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کوٹھے والی سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی منی کو کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے۔ نواب صاحب 60 کی عمر کے تھے اور یہ نوخیز کلی 17-18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت اس کے من کو بھائی، پھر ان چیزوں سے بھی دل اوبنے لگا۔ نواب صاحب پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے جن سے 7 جوان اولادیں تھیں۔ وہ اپنے فرائض کی عہدہ برائی میں گل بہار کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے۔ تنہائی گل بہار کو زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ ایک پڑوسن رشتہ دار بھی گل بہار کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند چہرے والی حسن پری پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکی مسہری پر ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے تازہ گلابوں کی گٹھڑی کو اطلس و کم خواب کے ملبوس میں باندھ دیا گیا ہو۔ گل بہار میرے من کو بھی بھائی، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ یہ بات نواب صاحب کو کب گوارا تھی، مگر وہ گلزار کی خاطر صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے چپ تھے۔ زندگی کبھی تو ایک بے وفا شے ہے۔ حسن تو بے وقت کہلاتا ہے، لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ ایک روز جب نواب صاحب اپنے ذاتی گراؤنڈ میں پولو کھیل رہے تھے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور یہ حادثہ پھر ان کے لیے سفر آخرت کا باعث بن گیا۔ حادثے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ آپریشن ہوا تو شفا یابی کی بجائے جان چلی گئی۔ اب گل بہار بیگم آزاد تھی۔ وہ نواب صاحب کے ایک دوست کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ گلزار کو بھی ہمراہ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے گھر کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ احباب کے ساتھ بھی گل بہار زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ وہ خاتون خانہ بن کر کب رہ سکتی تھی؟ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھی۔ بہت جلد بھاری حق مہر دے کر انہوں نے گل بہار سے نجات پائی۔ علیحدہ گھر لے کر وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ گلزار بھی اسی ماپ صفت ماں کی بیٹی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ایک رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ بیٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی۔ اس کی نشانی کو سرے عام یوں دلدل کا پھول نہ بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی کارن تو اس نے شرفا کے محلے میں گھر خریدا تھا، جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کو ہی ملاقات کے لیے رسائی ملتی تھی۔ اس نے گلزار کو ایک اچھے اسکول میں پڑھایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخلہ کرا دیا۔ گلزار نے گل بہار کے دھدیال میں رابطہ رکھا ہوا تھا کہ نواب صاحب کے رشتہ داروں کو باور کرا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا، بلکہ نواب صاحب کی بیٹی کو پڑھا لکھا دیا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو سکے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ نواب کی جاگیر و جائیداد سے گلزار کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے، اور 2 سال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس بھیج دے۔ عقل تو عمر کے ساتھ آتی ہے، پہلے عقل سے کام نہ لیا، 9 عمری تھی، بالی عمر سنبھالی نہ گئی۔ نواب صاحب کے مرحوم ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی۔ اب بڑھاپے کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور بیٹی بھی جوان ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھالتی تھی، یہ کانچ کی گڑیا نما ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ گلزار لاکھ نگرانی میں پلی تھی، لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک نوجوان سے چار ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ اس نوجوان کا نام بختیار تھا اور وہ ایک ذمہ دار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔
दोनों एमए के तालिब इल्म थे और रोज़ मुलाकात होती थी तो मोहब्बत भी गहरी होती गई। गुलजार ने बख्तियार को अपने ख्वाबों का मरकज़ बनाया, लेकिन उसे ये इल्म न था कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। बख्तियार का ताल्लुक एक गांव से था और 9 उम्री में रिवाज के मुताबिक वट्टे सट्टे में शादी हो गई थी। वो तालीम मुकम्मल करने की खातिर शहर आया हुआ था। यहाँ उसके वालिद ने एक दोस्त की कोठी जो शहर में खाली पड़ी थी उसे रिहाइश के लिए मुहैया कर दी थी और गाड़ी भी ले दी थी। वो सिर्फ छुट्टियों में ही गांव जाता था। वक्त के साथ साथ मोहब्बत में मज़ीद रंग भरता गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों को ज़माने का डर न रहा, आज़ादाना मिलने लगे। बेइख्तियार बख्तियार को इस गुलबहार से इश्क होता जाता था। ये ना सोचा कि उसकी बाहें तो बाप के हाथों में हैं, जब खींच ली तब क्या होगा। उसे अब हमेशा के लिए पाना चाहता था, मगर मजबूर था। ख़ानदानी बंदिशें रुकावट बनी हुई थी। बहुत सोचा तो दिमाग चकराने लगता था। इस कश्मकश में कभी ये बहुत दूर निकल गए, तमाम फासले मिट गए, तन मन की दुनिया एक हो गई, मगर वो फासले ना मिट सके जो समाज ने हायल किए थे। गुलजार अब परेशान रहने लगी। वो बार बार कहती, बख्तियार तुम रोज़ कल पर बात को टाले जाते हो और मेरी जान पर बनी है। वो भी परेशान था, मगर उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे और इस मसले का क्या हल निकाले। आम हालात में अगर वो आज़ाद होता तो एक दौलतमंद घराने का चश्मो चराग था। गुलबहार को उसे अपना दामाद बनाने पर कोई एतराज़ भी न था। आज नहीं तो कल उसकी हालत माँ पर खुलने वाली थी। गुलजार एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थी, जिसका हल सिवाय शादी और कुछ न था। बात ही ऐसी थी कि अब बख्तियार भी शादी के मामले को आज कल पर नहीं टाल सकता था। बहुत सोच विचार से उसके सर में दर्द रहने और अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास गया और सर दर्द की शिकायत की। फिर बातों बातों में उसको सारे मसले से आगाह कर दिया। दोस्त डॉक्टर की बहन भी डॉक्टर थी। उसने अपनी बहन से कहा कि उसके दोस्त की बीवी उम्मीद से है, अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक करके बताओ कि होने वाले बच्चे की जिन्स क्या है। खातून डॉक्टर ने गुलजार को चेक करने के बाद रिपोर्ट दी कि वो एक बेटी को जन्म देगी। इस इंकिशाफ पर बख्तियार और ज़्यादा परेशान हो गया। उसके हाथों के तोते ही उड़ गए। गुलजार तो पहले ही जिंदा दीवार में चुनी जा चुकी थी। मसले का हल निकाला था। वो जानती थी कि माँ की मशकूक नज़रों से बचने का एक ही हल है कि बख्तियार उसका हाथ उसकी माँ से मांग ले। एमए के सालाना इम्तिहान हो चुके थे और अब दोनों की राहें जुदा जुदा होने को थी। गुलजार का इसरार शिद्दत इख्तियार करने लगा तो बख्तियार को लगता कि किसी दिन उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी और वो कोई फैसला फिर भी ना कर सकेगा। ये उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। आज गुलजार उसे अपने घर चलने पर इसरार कर रही थी। बख्तियार ने कहा, अच्छा गाड़ी में बैठो, चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बख्तियार ने एक अनजानी मंजिल की सिमत कार चला दी। गुलजार ने आंसू पोंछ डाले और खुशी से मुस्कुरा दी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा। मुझे अपनी बहन के घर उजड़ने का गम नहीं, अपने बहनोई की भी कोई परवाह नहीं। बस हम आज ही शादी कर लेंगे। वो खुशी से झूम उठी, जो ये समझती थी कि बख्तियार उससे शादी करने से कतराता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। अब उसे यकीन हो गया कि वो उससे मोहब्बत करता है। आज बख्तियार उसे एक अजीब सी समस्ती में बातें करता जा रहा था और गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तारी से चला रहा था। गुलजार ने कहा कि किधर जा रहे हो, मेरे घर चलो ना। वो बोला, चलते हैं, 2-4 मिनट दरिया की सैर तो करते चले, ताज़ा हवा ले लें। क्या खबर तुम्हारी वालदा ही रिश्ता देने से इनकार कर दे और ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। कैसी बातें कर रहे हो बख्तियार, तुम होश में तो हो। अगर उन्होंने इनकार भी किया तो मैं कब पीछे पलटने वाली हूँ, तुम्हारे साथ निकल भागूंगी। तुम तो ख्वामखा परेशान हो गई हो। अरे भाई, मैं कब पीछे हटने वाला हूँ। अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। हम मरने की बातें क्यों करें जबकि खूबसूरत ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। वो उसे हसीन ख्वाब दिखाने लगा, मगर एक बेयकीनी के लहजे में कि जैसे उसे खुद भी इन ख्वाबों पर यकीन ना हो, जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो, उससे और ख़ुद को बहला रहा हो। एकदम से रफ्तार तेज़ कर दी। खुदा के लिए बख्तियार, होश में रहो। दरिया के पुल पर इतनी तेज़ रफ्तारी से क्यों चला रहे हो? मरने मारने का इरादा है क्या? जब जान देनी ही ठहरी तो फिर डरना कैसा? अगर तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है तो फिर वो मेरी ही है। अगर मेरे हाथों से ये ज़िंदगी चली जाएगी तो हमारी मोहब्बत भी अमर हो जाएगी। फजूल बातें ना करो और गाड़ी रोको, वरना हम दरिया में जा पड़ेंगे। इस पुल पर तेज़ गाड़ी चलाना मना है। तुमको एतबार नहीं है मुझ पर? और उसने
पुल के किनारे गाड़ी और तेज कर दी, यहाँ तक कि हाथ स्टीयरिंग पर बेकाबू हो गए और इस मजाक में उनकी कार सामने से आती बस से जा टकराई। गाड़ी पुल के रैंक को तोड़ती दरिया में जा गिरी। इस हादसे के चश्मदीद बहुत से लोग थे, वो भाग कर मौका पर आ गए, लेकिन कोई भी डूबती लड़की को ना बचा सका। वो फिजा में हाथ बुलंद करती रही, मगर दरिया की तुंद मौजें उसे मौत की वादी में खींच ले गई। बख्तियार अलबत्ता तैरता हुआ किनारे तक आ गया, लेकिन फिर वो थक गया और डूबने लगा। तभी एक मल्लाह ने कश्ती से छलांग लगाकर उसे डूबने से बचा लिया। लड़की की तलाश की गई। जल्द ही उसकी लाश को एक तिनके की मानित लहरों ने परे उछाल दिया। पोस्टमार्टम में इंकशाफ हुआ कि वो उम्मीद से थी। कुछ दिन तफ्तीश का सिलसिला चला, फिर ये दास्तान माजी का हिस्सा बन गई। गुलबहार के घर ज़रा सी देर को भी उसकी बेटी का मुर्दा बदन नहीं लाया गया था। हस्पताल से उसे कब्रिस्तान ले गए थे। वो साथ गई और बैन करती जाती थी। उसके बैन अर्श तक जा रहे थे कि यही अकलौती बेटी उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। इस हादसे के बाद गुलबहार को चुप लग गई। वो जब तक जिंदा रही उसने किसी से भी कलाम न किया। जैसे उसकी कुव्वत गोयाई उसकी बेटी के साथ फरिश्ता अजल ले गया था। बेटी के बाद वो सिर्फ 5 बरस जिंदा रह सकी और एक रोज़ अपने घर में मुर्दा पाई गई। शायद कि उससे दिल का कोई मर्ज था। तभी तन्हाई में एक रात उसका हार्ट फेल हो गया और वो उस दुनिया से मुंह मोड़ कर चली गई। गुलबहार ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी की कब्र के साथ अपनी कब्र भी बनवाई थी। पड़ोसियों को वसीयत कर गई थी कि जब मैं मरूं मुझे मेरी बेटी के बराबर बनी हुई कब्र में दफन किया जाए। जब पड़ोसियों ने उसे इसकी बेटी की कब्र के बराबर दफन किया तो शायद गुलबहार की बेचैन रूह को करार आ गया हो, मगर पड़ोसियों की आंखें अश्कबार थीं। सुना है आज भी जब साल में एक बार बख्तियार गुलजार की कब्र पर फातेह के लिए जाता है तो वो गुलबहार की कब्र पर फातेह ख्वानी का एहतमाम ज़रूर करता है, इस सोच के साथ कि शायद इस तरह उसकी महबूबा की रूह को करार मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।